اس کا دوسرا باب 8ویں آیت سے 17 آیت تک پڑھیں گے. پنجابی میں سے پڑھ دیں. دوسرا ادھیائے، اوپر کی دوسرا ادھیائے اس کے 8ویں وچن سے 17ویں وچن تک ہم دیکھیں گے. اس کے بعد کوئی اردو میں بھی پڑھنے کے لیے تیار رہے. جو پرمیشر نے ایک بار عدل وچ پورب ول لایا. ہاں جی. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰਚਿਆ ਸੀ ਰੱਖਿਆ. ਅਤੇ ਜੋ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਰ ਬ੍ਰਿਛ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਤੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਵੀ ਉਗਾਇਆ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਅਦਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਸੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਲੀਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹਨ. ਦੂਜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਹੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕੂਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ. ਤੀਜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਦਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਰੂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਫਰਾਸ ਹੈ. ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਰਾਖੀ ਕਰੇ. ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਬ੍ਰਿਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਰਸੰਗ ਖਾਈ ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਵੇਂਗਾ तो जरूर मरेगा. اردو میں کوئی پڑھے اس کو؟ جی رہنا آپ کو. اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا. اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا. اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا. اور عدن سے ایک دریا باغ کو سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا. پہلی کا نام سور ہے اور جو فولیا کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگے سلیمانی بھی ہے. اور دوسری ندی کا نام جہون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے. اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے. اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے. اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. اور خداوند آمین. شکریہ. میرے عزیزو، آج ہم عدن کے باغ کے بارے میں سیکھیں گے. کوئی بڑا ہی چلا جائے بھائی بچوں کو کنٹرول بھی کرے. وہ بھی بھائی پلیز آپ تھوڑا سا بچوں کو کنٹرول کریں. بھاگنا دوڑنا ذرا بچے بند کریں. بڑے بچوں کو اندر بٹھائیں جو بیٹھ سکتے ہیں اور خدا کے کلام کو وہ بھی سنیں. میرے عزیزو، باغ عدن کے تعلق سے بڑے خیالات ہیں اور آج تک جتنے بھی جغرافک والے لوگ ہیں اور ہسٹری دان ہیں وہ ابھی تک باغ عدن کو صحیح طرح سے ڈھونڈ نہیں پائے. قیاس آرائیاں ہیں، خیالات ہیں کہ باغ عدن کہاں پر تھا. میں سوچتا ہوتا تھا پہلے کہ باغ عدن جو ہے وہ شاید عراق کے پاس تھا یا عراق میں تھا. اسی طرح بہت سارے لوگ اپنے خیالات اور کوئی ہسٹری وہ اٹھاتے اور
اس کو اپنے حساب سے سوچتے کہ باغ عدن کہاں ہے، لیکن حقیقت میں آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ باغ عدن تھا کہاں۔ یہ ایک راز ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک خادم کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ ایک اسکالر ہے، بہت بڑا اسکالر، تو مجھے شوق لگا اور میں بڑا خوش بھی ہوا اس بات کو سن کے کہ باغ عدن کہاں پر ہے۔ جتنے بھی یہودی ربی ہیں، جو بڑے بڑے اسکالر ہیں، اسرائیل کے ربی، ان کا ماننا ہے کہ باغ عدن جو ہے وہ ایکچولی یروشلم جو ہے وہ باغ عدن کی جگہ پر بنا ہے۔ یہ میرے لیے ایک شاکنگ سی بات تھی۔ یہ چند دن پہلے میں نے اس بات کو سنا۔ ان کے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں کہ باغ عدن یروشلم میں تھا، یا یروشلم جہاں پر ہے وہاں پر باغ عدن تھا۔ ہم ٹھیک طرح سے نہیں کہہ سکتے، لیکن جب ہم کسی چیز کو ثبوتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہم اس کا یقین کرتے ہیں۔ خیر، ابھی یہ کہنا مناسب نہیں کہ واقعی باغ عدن وہاں پر تھا، لیکن جو میں نے وہ بات سنی اس اسکالر کی، تو میں اس بات کو کافی حد تک ماننے کے قریب آ گیا ہوں۔ لیکن ابھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ واقعی باغ عدن جو ہے وہ یروشلم جہاں پر ہے وہ جگہ باغ عدن تھی۔ خیر، حقیقت میں خدا ہمیں باغ عدن سے کیا سکھانا چاہتا ہے؟ خدا میرے اور آپ کے گھر کے لیے، میرے اور آپ کے خاندان کے لیے باغ عدن میں کیا خدا نے ریولیشن رکھا ہے، کیا بھید ہے؟ آج ہم اس بھید کو جانیں گے۔ ایک دھرمی جو ہے، ایک ایماندار جو ہے، اس کا گھر، اس کا خاندان جو ہے وہ باغ عدن کی طرح ہے۔ جو چیزیں باغ عدن میں ہیں میرے عزیزو، وہ چیزیں خدا کے لوگوں کے گھر میں ہونا ضرور ہے۔ آئیے ہم غور کریں کیا وہ خاص چیزیں ہیں جو ایک دھرمی، ایک جو پربھو پر ایمان رکھتا ہے، ایک ایماندار جو ہے، اس کے گھر میں کون سی یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ 5 چیزیں آج ہم دیکھیں گے۔ 5 چیزوں کو باغ عدن میں کیا 5 چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں ہونا ضروری ہے۔ باغ عدن کے لیے ہبرو کے 2 لفظ ہیں۔ کتنے لفظ ہیں؟ جو پہلا لفظ ہے وہ ہے ہا ادون، بلکہ جو پہلا لفظ ہے وہ ہے ہا ادن۔ بولیے میرے ساتھ، ہا ادن، ہا ادن، جس کا مطلب ہے سکونت کی جگہ۔ آپ نے نوٹ کر لیا؟ ہا ادن، جس کا مطلب ہے سکونت کی جگہ، آرام دہ جگہ، جہاں پر انسان آرام سے رہ سکے۔ اور جو دوسرا لفظ ہے ہبرو کا، وہ ہے ہا ادون۔ کیا ہے؟ ہا ادون، ہا ادن، ہا ادون۔ یہ باغ عدن کے لیے پورا لفظ عبرانی میں، ہبرو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جو دوسرا لفظ ہے ہا ادون، اس کا مطلب ہے خوشی۔ کیا ہے جی؟ اردو کا ایک نام ہے نا عدنان۔ عدنان لفظ اسی سے نکلا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب بھی خوشی ہے۔ بہت سارے پاکستان میں لوگ اپنے بچوں کا نام عدنان کرتے ہیں۔
इंडिया वाले बहन भाई ने सुना होगा, बहुत सारे इंडिया में भी अदनान फिरते रहते हैं। तो अदनान का मतलब है खुशी, और इस दोनों को मिलाकर देखें, ऐसी सुकूनत की जगह जहां पर इंसान खुशी से रह सके। सो खुदा ने इंसान के लिए सबसे आरामदेह जगह रखी, और वहां पर खुदा ने इंसान के लिए हर ज़रूरत की चीज़ रखी ताकि वो सुकूनत से रहे, आराम से रहे और खुश रहे। हम इसीलिए तो घर बनाते हैं ताकि हम आराम से रहें, हम खुश रहें। आमीन। मेरे जीजो, एक बात याद रखिए, ज़बूर 127 में लिखा है, भजन संहिता 127 में लिखा है, जब तक यहोवा, जब तक खुदावंद ही घर ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत अबस है। मेरा और आपका घर जो बनाने वाला है वो यहोवा है, हमारा खुदा है, हमारा प्रभु है। हालेलुया। और खुदा ने आदम को बनाने से पहले उसके लिए एक बाग तैयार कर लिया, उसके रहने के लिए जगह तैयार कर ली गई। हालेलुया। आपके पैदा होने से पहले खुदा ने आपकी जिंदगी का सारा प्लान कर लिया है। हालेलुया। जमीन पर घर और आसमान पर घर, आप ऑलरेडी खुदा के प्लान में हैं। खुदा ने आपके लिए मास्टर प्लान बना रखा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैंने गुड फ्राइडे को भी बताया कि यीशु मसीह ने जब कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो उसके लिए वही लफ्ज है जो बागे अदन के लिए है, हा अदन हा अदून। फिरदौस में होगा, स्वर्ग में होगा। आमीन। और उर्दू में जो इसका आसान तर्जुमा जो किया गया है वो बाग किया गया है। हिंदी में भी बाग ही है ना, अभी बाग ही हमने पंजाबी हिंदी में पढ़ा है। तो जब हम इसका हिब्रू और यूनानी में देखते हैं तो इसका मतलब पैराडाइज है, जन्नत है, फिरदौस है, नया आसमान है और स्वर्ग है। तो ये जो लफ्ज है फिरदौस, ये फारसी से आया है। उस दिन आपने सुना था ना, तो जो फारसी बादशाह होते थे, आजकल जो ईरान है, फारसी जो बादशाह होते थे, जिस शख्स से खुश होते थे उसे इनाम के तौर से कहते थे, आज शाम तू मेरे साथ मेरे फिरदौस में पार्टी करेगा, मेरे साथ आएगा और जश्न करेगा। वो अपने बादशाह के जश्न में शरीक होता जो बादशाह को खुश करता। मेरे जीजो, आप और मैं बागे अदन में, फिरदौस में, स्वर्ग में तब ही जाएंगे जब हम अपने बादशाह को राजी करेंगे, उसको खुश करेंगे। आमीन। सो आइए हम देखेंगे कि कौन सी 5 चीजें एक रास्तबाज, एक धर्मी के खानदान में, घर में होना जरूरी है। पहली चीज, पंजाबी में आपने जो पढ़ा था, जो ये बाग था किस तरफ खुदा ने बनाया, केड़े पासे खुदा ने एक बाग लगाया? पूर्व पर, पूर्व पर, मशरिक पर, ईस्ट। इसका क्या मतलब है? स्पिरिचुअल इसके 2 मतलब है, लेकिन आज हम जिस मतलब को देख रहे हैं, मशरिक की तरफ हम जब सुबह उठते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? रोशनी। रोशनी कहाँ से आती है? मशरिक नहीं, सूरज से आती है। आती तो होती तो मशरिक की तरफ से ही है, तो सूरज की तरफ से रोशनी आती है। आमीन। तो पहली चीज जो है, हमें मशरिक की साइड खुदा ने दिखाई। ये भी लिखा जा सकता था खुदा ने एक बाग बनाया, ये भी लिखा जा सकता था, पर क्यों खुदा ने जरूर इस लफ्ज को डाला कि पूरब की तरफ? पंजाबी में लिखा है पूरब की तरफ, उर्दू में लिखा है मशरिक की तरफ, इंग्लिश में जाए तो ईस्ट। लाजम इस लफ्ज को क्यों लिखना
रखना लाजम था, क्योंकि ईस्ट से सूरज निकलता है। आमीन। और खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा जो है आफ़ताबे सदाकत है, सच्चाई का सूरज है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चाई का सूरज है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारी आंखें हमेशा सच्चाई के सूरज की तरफ लगी रहे। पौलुस रसूल कहता है, कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। हालेलुया। वो आफ़ताबे सदाकत है, सच्चाई का सूरज है। आमीन। हमारी आंखें उस पर लगी रहें, उसे तकती रहें। हमारा यीशु कैसा है, हमारा यीशु क्या करता है, हम उसको फॉलो करें, उसकी रोशनी में चलें। यीशु ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, दुनिया की ज्योति मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, दुनिया की ज्योति मैं हूं। जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा, जिंदगी की ज्योति पाएगा, जिंदगी की रोशनी पाएगा। हालेलुया। जोरदार तालियां आपके प्रभु के लिए। ये पहली बात है, यीशु को तकते रहें, यीशु के चेहरे को देखते रहें। धर्मियों की जिंदगी में सबसे पहली बात मशरिक की तरफ का मतलब है कि यीशु को देखते रहो। हालेलुया। दूसरी बात, हमने देखा कि इस बाग में खुदा ने फल लगाए, पौधे लगाए, पेड़ लगाए। हम सब खुदा के घर में पेड़ों की मानी है। कैसे है? यीशु मसीह ने मिसाल दी ना, तमसीला कहीं, मिसाला कहीं। यीशु ने कहा कि एक शख्स ने पाकिस्तान लगाया। पाकिस्तान कहते हैं अंगूरों के बाग, और इसका रूहानी मतलब क्या है? पाकिस्तान का रूहानी मतलब कलीसिया है। याद रखिए, मैं किसी दरख्तों पर भी टीचिंग दूंगा, दरख्त भी हमसे बोलते हैं। आमीन। पाकिस्तान अंगूरों का बाग, और अंगूरों का बाग क्या है? कलीसिया है। बोले कलीसिया, बोले पाकिस्तान। ठीक है। इंडिया में पंजाबी कहते हैं हमने खालिस्तान बनाना है। कभी कभी पाकिस्तान में आवाज उठती है, क्रिश्चियन पाकिस्तान बनाएं। पाकिस्तान तो बन गया, अब खालिस्तान, अब पाकिस्तान बनने की जरूरत है। हम डिवाइड रूल पे बिलीव नहीं करते। हम अमन के लोग हैं, सलामती के लोग हैं। हम जहाँ पर रहते हैं उस मुल्क की सलामती चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्कों में तोड़ फोड़ हो, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्कों में यीशु का राज हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ पर यीशु का राज है वो पाकिस्तान है। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि एक शख्स ने पाकिस्तान लगाया, तो उसके बीच में क्या किया? एक उस बाग में अंजीर का दरख्त लगाया। तो अंजीर का दरख्त किसको कहते हैं? स्पिरिचुअल जो इसका मानी क्या है, मैंने बड़ी दफा बताया। इस्राएल कौम को, यहूदी कौम, इस्राएल कौम को जो है वो अंजीर का दरख्त कहा गया। और यीशु ने कहा कि उसका मालिक उसके अंदर फल ढूंढने आया, तो फल, तो फिर उसने क्या कहा? आता रहा, 3 साल आता रहा। तो फिर उसने बागबान से कहा कि इन्होंने भाई ऐसी जगह बंदी, मैं और आप खुदा के घर में दरख्तों की मानद लगाए गए हैं। दूसरी बात याद रखिए, हम खुदा के घर में एक दरख्त की मानद हैं। अगर फल नहीं है तो फिर जो दरख्त फल नहीं लाता, यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना की इंजील में लिखा है, यीशु ने ये बात कही। यूहन्ना की इंजील 15वां अध्याय उसको पढ़े, वहां पर लिखा है जो दरख्त फल नहीं लाता उसको काट दिया जाता है और आग में डाला जाता है। खुदा ने आदम के लिए जो बाग बनाया उसमें खूबसूरत दरख्त जो देखने में भी बड़े खूबसूरत, और उनका टेस्ट, उनके फ्रूट का टेस्ट जो है वो बड़ा शानदार है, बड़ा मजेदार है। आज
कलीसिया की मोहब्बत ही उठ गई। हमारा जो टेस्ट है वो मसीह की मोहब्बत है, और हमारा जो टेस्ट है वो नमकीन है। हम नमक की मानिंद हैं, थोड़े हैं, पर मेरे अजीजों याद रखें, परात भरकर आटा डाला जाता है और उसे नमकीन करने के लिए कितना नमक डाला जाता है? एक चुटकी। आज तो नमक का मजा ही नहीं है। कलीसिया अपना स्टैंडर्ड खो चुकी है, अपनी मोहब्बत खो चुकी है। यीशु ने कहा, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। कलीसिया के बटन पहनने के एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, माफी का रूह नहीं है। खुदा ने जो दरख्त लगाए हैं वो खूबसूरत, देखने में खूबसूरत है। जैसे वो दरख्त था जिसकी मिसाल यीशु ने दी, अंजीर का दरख्त, पत्ते हरे भरे, डालियां बड़ी शानदार, पर फल को नहीं, जीरो। हमारी जिंदगी में जीरो फल है। कभी हमारी दुआ से किसी ने बरकत नहीं पाई, अपने वास्ते ही दुआएं मांगी जाने हैं, अपने हमसायों पर गौर नहीं, अपने अजीजों पर कोई गौर नहीं, अपनी जेबा पर ही जाने हैं, मोहब्बत नहीं है। मेरे अजीजों, ये फलदार दरख्त हैं जो खुदा ने बनाए, जो बाग में लगाए गए। खुदा ने बाग में जो दरख्त लगाए हैं वो सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, फलदार भी हैं। हम सब देखने में तो बड़े रूहानी लगते हैं, पर हम रूहानी तौर से कितने फलदार हैं। ये दूसरी बात है, एक धर्मी की जिंदगी में वो फलदार जिंदगी हो, उसकी जिंदगी से लोग बरकत पाएं, उसकी जिंदगी से कलीसिया तरक्की करे, उसकी जिंदगी से चर्च ग्रो करे, उसकी जिंदगी से बड़े लोग खुदा की बादशाहत का हिस्सा बन जाएं। ये दूसरी बात आपकी जिंदगी में है, फलदार जिंदगी बसर करे, नहीं तो काट देगा खुदा। यीशु ने कहा कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं, तेरा नाम ही गति नहीं लाऊंगा। ये इसका मतलब है, और ये खतरनाक है। याद प्रकाशित वाक्या मुकाशा की किताब में यीशु ने कलीसिया को कहा कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को, यानी कि तुझे कभी याद नहीं करूंगा, तेरा नाम नहीं लूंगा। और जिसका नाम किताब हयात में लिखा ना गया, जिंदगी की किताब, मेरे अजीजों, ये उसका मतलब है। यीशु ने कहा कि मैं तेरा नाम किताब हयात से निकाल दूंगा। ये दूसरी बात है कि हमारी जिंदगी फलदार हो। आमीन। हम देख रहे हैं बागे अदन को, हम बागे अदन की सैर कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहली खूबसूरत चीज, बाग में हमारे घर में जो रोशनी पड़े, यीशु की रोशनी पड़े। बाप पर भी, माँ पर भी, बच्चों पर भी। सुबह उठते, सुबह जब वो फूटे, तब ही से हमारे घर में हम दो सना, प्रस्तिश, जय जयकार के नारे हों, कलाम, वचन की आवाज आए। और सेकंड, हम सब अपनी जिंदगी में फल पैदा करें और लोगों को खुदा के घर में ऐड करें। आमीन। और तीसरी बात, इस बात की खूबसूरत तरीन चीज, सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज क्या है? मेरे साथ आप देख सकते हैं, नामी आयत को पढ़े जरा, जरा पंजाबी थोड़ा जोर दी, मजा आएगा। है नामी अध्याय नाम वचन, दूसरा अध्याय नाम वचन पढ़ो जोर। ਅਤੇ ਯहोਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸੀ
ਔਰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਵੀ ਉਗਾਇਆ। आमेन। उर्दू में लिखा है, और बाग के बीच में हयात का दरख्त। किसका दरख्त? हयात का। हम हमेशा जो पहले जिक्र करते हैं, खुदा ने वो दरख्त लगाया जो नेकोबत की पहचान का दरख्त था। नेकोबत से पहले जिंदगी के दरख्त की बात की गई है। जिंदगी का दरख्त। मेरे चीजों, यहां पर लिखा है कि खुदा ने बाग के बीच में, सेंटर में, दरमियान में, बाग के दरमियान में जिंदगी का दरख्त लगाया। ये जिंदगी का दरख्त कौन है? जो सेंटर है, जो मरकज है, ये खुदा का बेटा खुदा यीशु है। जब आप प्रकाशक वाक्या देखते हैं, जब आप रेवलेशन मुकाशफा की किताब को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह को जिंदगी के दरख्त से तशबीह दी गई है। जिंदगी का दरख्त कहा गया है जिसके पत्तों से कौमों को शिफा मिलती है। ये यीशु है जो जिंदगी का मालिक है। हालेलुया। मेरे जीजो, बड़ा खूबसूरत लफ्ज लिखा है कि बाग के बीच में, पंजाबी में क्या है? नहीं, बीच जड़ा लफ्ज है, बाग के बीच में जीवन का नहीं, बीच जड़ा लफ्ज है, दरमियान वाला, उनमें सेंटर। मेरी बात सुनिए, इस बात को समझने की कोशिश करें। हम सब का मरकज, हम सब का जो सेंटर है, खानदान कब मजबूत होगा, हस्बैंड वाइफ बच्चे कब खुदा के करीब होंगे, हम सब एक दूसरे के करीब कब आएंगे? जब हम सब का सेंटर एक होगा। और सेंटर कौन है? यीशु। जब हम यीशु के करीब आएंगे, मिसाल के तौर में सबसे जो दरमियान वाली चेयर है यहाँ पर, उसके करीब जाने के लिए हम चारों तरफ से आते हैं, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब से आते हैं। जो दरमियान में है, दरमियान वाली चेयर है, उसके करीब जब हम आते हैं, सारे करीब आते जाएंगे, तो मेरे जो जब हम सेंटर वाली चेयर बिल्कुल करीब आ जाएंगे, सब करीब आ जाएंगे, तो सेंटर में तो यीशु है। एक्चुअली हम यीशु के पास आ रहे हैं, तो यीशु के पास जब आ रहे हैं तो हम भी एक दूसरे के करीब आते चले जाते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हमारा सेंटर जो है यीशु होना चाहिए। सबका, पूरे खानदान का मरकज जो है वो यीशु होना चाहिए, क्योंकि वही जिंदगी का मालिक है। हालेलुया। ये तीसरी बात है, हमारे घर में सब काम यीशु ही से शुरू हो और सब काम यीशु ही पर खत्म है। हालेलुया। उससे कुछ भी आगे पीछे नहीं है। यीशु जी ने एक लफ्ज अपने लिए कहा जो यहोवा पाक खुदा के लिए, सर्वशक्तिमान के लिए है। सिर्फ सर्वशक्तिमान के लिए ये लफ्ज है, और वो क्या है? यीशु ने कहा अल्फा और ओमेगा मैं हूं। उर्दू में इब्तिदा और इंतहा मैं हूं। पंजाबी में क्या कहेंगे? आद और आखिर। पहला ते आखिर किए यीशु ही है। हमारी जिंदगी का शुरू भी यीशु हो, हमारी जिंदगी का इख्तिताम भी यीशु हो, आखिर भी यीशु हो। हालेलुया। मेरे जीजो, तब आप सुकूनत की जिंदगी गुजार सकेंगे, खुशी की जिंदगी बसर कर सकेंगे। हालेलुया। तब हमारा घर जो है वो एक आरामदेह जगह बन जाएगी। इसलिए इस घर में यीशु होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यीशु जब आपकी और मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो कोई सुकून नहीं है, कोई आराम नहीं है। यीशु उसी के ताल्लुक से लिखा है वो प्रिंस ऑफ पीस है, वो सलामती का शहजादा है, वो अमन का शहजादा है, वो सलामती का शहजादा है, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। उस शांति के राजकुमार के लिए जोरदार ताली बजाइए। यीशु हमारी जिंदगी में जरूर है। और चौथी बात, इस पर जरा गौर से देखिए, इस बात से कितनी नदियां निकल रही थी? पंजाबी में भी वही था और उर्दू में भी वही था।
कितनी नदियां सन? चार। और चार नदियां जब निकल रही थी तो जो दो नदियों का जिक्र है, कोश और हवेला जगह का जिक्र है, ये बंजर इलाके थे। ये ऐसे इलाके थे जहां पर हरियाली नहीं थी, पथरीले, जहां पर बूंदोबाश हो नहीं सकती। तो इन नदियों का काम ये था कि ये उन इलाकों को भी सिराब कर रही थी, उन इलाकों में भी बह रही थी। मेरे जीजो, एक औरत यीशु मसीह के पास आई, सामरी औरत, यीशु मसीह कुएं पर बैठा हुआ है और उसे कहता है मुझे पानी पिला। तो वो क्या कहती है? उसके कपड़े देखकर, उसका आओ भाव, उसका बोलने का स्टाइल देखकर कहती है कि तू तो यहूदी है, एक बड़ी नस्ल का है और मैं तो छोटी नस्ल की छूत हूँ, मैं तो कोई हैसियत नहीं रखती, तो मुझे खुदावंद होके, बड़ी नस्ल का होके, बड़ी जात का होके तो मुझे कहता है पानी पिला। तो यीशु कहता है कोई आर्गुमेंट नहीं है, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, जिंदगी का पानी जो तेरे अंदर से चश्मे बन के फूट निकलता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे दिलों, खुदावंद हमें जिंदगी का पानी देता है जो चश्मों की मानिंद है। खुदावंद ने हमें चश्मों की मानिंद जो है वो तशबीह दी है। हमारा काम है उस जगह पर भी जाएं, उन जिंदगियों तक भी मार करें जो अभी तक बंजर हैं, जिन्होंने अभी तक खुदा के कलाम को नहीं सुना। मेरे जीजों, खुदा चाहता है कि हम उन जिंदगियों तक भी पहुंचे, उन इलाकों में भी जाएं जहां तक अभी तक यीशु का कलाम नहीं पहुंचा। हम उन नदियों की मानिंद बनते हैं। आमीन। हम बागे अदन की सैर कर रहे हैं, हम बागे अदन को देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा घर बागे अदन की मानिंद बन जाए। तो इन बातों का होना जरूर है। ये चार बातें हमने सीखी हैं। पहली बात क्या है? मशरिक, सूरज को देखना, यीशु को तकते रहना, आफताब सदाकत को देखते रहना, सच्चाई के सूरज को देखते रहना, उसकी किरणें, उसकी रोशनी हमारी जिंदगी में रहे। हालेलुया, ताकि हम अंधेरे में ना रहें। और दूसरी बात जो हमने देखी थी, बाग के अंदर अच्छे अच्छे दरख्त हैं, हम सब अच्छे दरख्त हैं। हम देखने में अच्छे ना रहूं, बल्कि हमारा फल भी अच्छा हो, हमारा बोल चाल अच्छा हो, हमारे बोल चाल से लोग बदल जाएं और यीशु के पास आ जाएं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं लोगों के रवैये से, उनके करैक्टर से, उनके किरदार से लोग यीशु के पास आते हैं। उन्हें बहुत सारी दुआएं नहीं करनी पड़ी, उनको बड़ा कलाम नहीं सुनाना पड़ा, प्रचार नहीं करना पड़ा। उनका बोलने का स्टाइल ही इतना खूबसूरत था कि लोग यीशु के पास आ गए। उनका किरदार ही ऐसा था। हम ऐसे दरख्त हैं, हमारा करैक्टर जो है वो शानदार होना चाहिए, हम फलदार जिंदगी। और तीसरी बात जो हमने देखी कि बाग के दरमियान में सेंटर में कौन है? हमारे खानदान में क्या आपके और मेरे घर के सेंटर में यीशु है? नहीं है। मैं भी इस बात को मानता हूं। अगर यीशु सेंटर है तो खुशहाली किधर है? बरकत किधर है? सुकून किधर है? यीशु को सेंटर माने, सब कुछ यीशु को माने, अल्फा और ओमेगा यीशु आपकी जिंदगी में। आपका और मेरा अल्फा ओमेगा जो है वो सुबह सुबह उठ के चित्रा शुरू हो जाता है। हमारा अल्फा तो चित्रा है, हमारा ओमेगा तो एक दूसरे के खिलाफ बातें करना है। जितों तक असी चुगलियां ना कर लीए, सब नींद नहीं आती। ये कलीसिया का हाल है। मेरे जीजों, अगर हम मसीही हैं, हमारा आगाज दूसरों के लिए दुआ से शुरू हो, दूसरों के लिए बरकत से शुरू हो। दिली तौर से हम उनके लिए बरकत चाहें और हमारा आखिर जो दिन का हो वो भी दूसरों के लिए बरकत चाहते रहें। आमीन। यीशु ने यही तो किया था, अपने सताने वालों के लिए भी दुआ की। आखिरी दम पर
यीशु कहता है बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते। जब आप सोते हुए कहते हैं खुदा जिसने आज मेरा दिल दुखाया है उसको माफ़ कर, मैं भी उसे माफ़ करता हूँ, मैं दिल से उसे माफ़ करता हूँ। और नेक्स्ट डे जाकर आप उसे मॉर्निंग जब होती है, जब आप नई सुबह के सूरज को देखें तो अपने दोस्त अपने भाई बहन को माफ़ करके उससे गले लगाएं। हालेलुया। हो सके तो सॉरी कर दें, तब आप जो है वो कह सकते हैं कि यीशु मेरे घर का सेंटर है। आप करके तो देखें कितनी खुशी, कितना इत्मीनान आपको मिल जाएगा। हालेलुया। जब हम माफ़ ही नहीं करते तो सुकून कितने मिलने हैं? सुकून कोई नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चौथी बात जो हमने देखी, हम उन नदियों की मालिक बन जाएं जहाँ पर कलाम अभी तक नहीं गया, अभी तक वचन नहीं गया, हम वहाँ तक मार्क करें। इंडिया पाकिस्तान सोचता रहता है, पाकिस्तान सोचता मैं इंडिया के आखिरी सूबे तक, आखिरी इलाके तक जो है ना अपना मिसाइल फेंकूंगा। वो इतने इतने दूर तक सोचते हैं, और पाकिस्तान सोचता है कि मैं ऐसा मिसाइल बनाऊं वो जो इसराइल तक मार करे। तबाही की सोच और कलीसिया की सोच फर्क है। हम वहां तक मार करें, हम वहां तक पहुंचे जहां तक अभी तक खुदा का कलाम नहीं गया, अभी तक खुदा उनका वचन नहीं गया, अभी तक जिन्होंने यीशु का कलाम नहीं सुना। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो खुदा आपका कान पकड़ के ले जाएगा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। आज से 7 साल पहले, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, 7-8 साल पुरानी बात है, बल्कि 8-9 साल होने वाले, खुदा हमें मलेशिया की जेल में ले गया। मैं और मेरी बीवी 26 दिन जेल में रहे। 26 दिन जेल में रहे तो 26 दिनों में ऐसे लोग जिन्होंने कभी यीशु का नाम नहीं सुना, वियतनाम, चाइना से आई हुई लड़कियां, मेरी वाइफ के साथ और मेरे साथ कुछ नाइजीरियन और पाकिस्तानी मसीही और गैर मसीही लोग थे। तो खुदा ने हमें कान पकड़ के ले गया और वहां पर जाके हमने खुदा यीशु का प्रचार किया। जिन लोगों ने कभी यीशु का नाम तक सुना नहीं था कि यीशु भी कोई इस दुनिया में आया है, उन लोगों ने यीशु को एक्सेप्ट किया। 26 दिनों में 26 रूहों ने यीशु को अपना प्रभु कबूल किया, अपना मालिक मान लिया। बहुत बड़ी जगह है दुनिया में पड़ी हुई। एक शख्स मेरे भाई के पास आया, मेरे पास आया और कहता है, पादरी साहब मेरे अंदर बड़ा कलाम है, मैं लोगों को बचाना चाहना वहाँ, पर मेरे को जगह ही कोई नहीं, कितने में जाके कलाम सुनाऊँ। तो मेरा छोटा भाई बड़ा चिल्ला कहता है, वो तेरे अंदर कोई यीशु नहीं है, कोई तेरे अंदर कलाम नहीं है, कोई तेरे अंदर भूख नहीं है। और जगह की जो बात करता है, जहां पर हम खड़े हैं वही जगह अंजील सुनाने के लिए है, वही जगह प्रचार करने के लिए है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो तो जंगल में चला गया, वहां पर जाके मुनादी करता है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। अब दरख्त की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा गया है। जंगल में खुदा ने लोग उसको दे दिए, जंगल में खुदा ने मंगल लगा दिया। आपके अंदर खुदा का कलाम हो तो सही, और गवाही देने की रूह आपके अंदर हो तो सही। इधर पादरी साहब थक जाते, ऊंची ऊंची दुआ करो, दुआ ही कभी नहीं निकलती साढ़े मुंह चो। गवाही आपने क्या सुनानी है ही नहीं गवाही। जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास गवाही है, यीशु ही नहीं आपके पास। कभी किसी ने नहीं मुझे कहा कि पास्टर साहब मैं गवाही सुनाना चाहता हूं। आज बहन ने सुना ली, मुझे फोन करके कहा कितने सालों के बाद है? चलो शुरू तो होगा, ये स्टार्ट है, गवाहियां चलती रहनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद हम एक गवाही भी सुनेंगे। बहन ये प्यारी बेटी गवाही सुनाना चाहती हैं, दिस इज यू। तो गवाही सुनाया करे कभी कभी। पास्टर साहब ने नहीं आपको कहना गवाही। खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और 5वीं बात, बाग-ए-अदन की सबसे खूबसूरत बात, बाग-ए-अदन की जो रौनक है वो क्या है? खुदा ठंडे वक्त में
ये मैंने बड़ी दफा बताया, ये ठंडा वक्त कौन सा है? तो कोई बताओ तो सही। सुबह का वक्त, जब वो फूटती है। इंडिया पाकिस्तान में तो जब गर्मियां होती हैं तो शाम को छत और दीवारें तपी होती हैं, ऐसे ही है ना। छतों पे सोते थे जब हम, तो पहले अच्छी तरह से 1-2 घंटा पहले पानी छिड़का के, करौंता लगा के, ठीक है ना, छोड़ देते। खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सबसे खूबसूरत चीज जो बाग अदन की, जिससे रौनक, जो सबसे बड़ी चीज, सबसे बरकत की चीज होती है, खुदा आदम से मिलने के लिए सुबह खुदा से मुलाकात करें। मेरे अजीजों, ये जरूरी है, सबसे जरूरी चीज, हम सुबह उठकर खुदा का इंतजार करें। आदम इंतजार करता और खुदा आदम के मिलने के लिए तड़पता। सुबह सवेरे सबसे पहले खुदा आदम को विजिट करता। खुदा ने जहां से ऐसी आज भी वही खुदा उसने है, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी वक्त पाए। होता है हम जोर जोर से खराटे भरने लगते हैं, आराम करने लगते हैं। उस वक्त नहीं हम चाहते कि हम लोग पाए। जरा से बच्चों की आवाज आए, डांट पड़ जाती है मैडम को, तो कोई ना साफ नहीं सकती, हो तो नींद आ लगी सी। असल में होली स्पिरिट मदद कर रहा होता है। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मदद कर रहा होता है। उठ जाएं, उठ जाओ, खुदा बाप आपको और मुझे विजिट कर रहा है। हालेलुया। कोई ना कोई नेचर जो है हमारी मदद कर रही होती है। खुदा आवाज देता, लिखा कि वो पुकारता, आदम तू कहाँ है? असी कितने होंगे हैं? ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਖਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਝਟਣਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਦੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, बस खाबा की चीज़ा फेरते रहते हैं और खाब में बरकत लेते रहते हैं, वो खाब ही हो जाता है। सुबह सुबह उठें और खुदा के कलाम को दें, खुदा से मुलाकात करें। ये बात की सबसे खूबसूरत चीज है। खुदा से रफाकत करें, संगत करें। हालेलुया। ये पांचवी चीज है। ये 5 चीजों का होना हमारी जिंदगी में, हमारे खानदान में जरूरी है। हालेलुया। तो आओ जीजो, अपने कदमों पर खड़े हों और इन 5 चीजों को चगाली करें। जैसे भेड़ बकरियां चगाली करती हैं, अपना मुंह हिलाती रहती हैं, इन 5 चीजों पर गौर करें। इन 5 चीजों का मेरी और आपकी, आपके खानदानों में होना जरूरी है। खुदा के कलाम की रोशनी हम पर पड़ती रहे। हमारे दिन का आगाज यीशु को देखने से हो। हालेलुया। और खुदा से दुआ करें हम सब फल देने वाले पौधे हों, ऐसे दरख्त जो दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने, ठोकर का बाइस न बने। और हमारे घर का, हमारे खानदान का सेंटर, मरकज यीशु हो। हमारी बातचीत यीशु से शुरू हो, हमारे दिन का आगाज यीशु से हो, हमारी शाम, हमारी रात यीशु पर खत्म हो, उसी के कलाम से। और हम ऐसे बाबरकत हों, बंजर जमीनों को भी सैराब कर दें, शदाब कर दें, हरा भरा कर दें। खुदा उनके पास लोगों को लेकर आए, प्रभु के घर में लोगों को लेकर आए। हालेलुया। और 5वीं और सबसे जरूरी चीज, खुदा से मुलाकात करने के लिए सुबह से गए उठे, 11-12 बजे उठ के गीत गाया कर रहे हैं। तड़के में तेरे ढूंढा यार अब मेरे बुलाया। तो तड़के 10-11 बजे नहीं होते,
तड़के जो है वो सुबह 3-4 बजे सुबह उठकर, हमारे बुजुर्ग ऐसे दुआ करते थे। इंडिया च में जी है ना, पाकिस्तान च में इसलिए तो बाबरकत सन, एक ही बंदा कमांदा सी तो सारे खाते सन, क्योंकि वो तड़के उठ के खुदा को ढूंढते थे। मेरी दादी दादा उठ के, मेरी माँ, मेरे बुजुर्ग ऐसे ही करते थे, आपके भी ऐसे ही करते थे। ऐसे भी